Okay, so now come back to the book. Okay, here is your book about communication. Unit 1, that is communication skills. So communication skill, methods of communication. The methods of communication. The word communication comes from the Latin word communicate, meaning to share. Okay, being able to communicate effectively is one of the most important life skill. As I have told you about the communication, it may in a verbal or non-verbal. Like as information technology is the way, also a way of communication. By the help of technology, we can communicate to the person or to the organization. And now here is something like as transmitting, listening, feedback. The sender transmits the message through one medium to another. Listening, the receiver listener to understand the listens to or understand the message. And feedback, the most important thing is feedback. The receiver conveys their understanding of the message to the sender to the form of feedback to complete the communication cycle. Like as if I am going to deliver my lecture, deliver my topics, deliver my lecture and whatever is there, and if you are not getting the points, if you are not getting the point, that is then my efforts are useless. अगर मैं आप लोगों से डिलीवर कर रहा हूँ और आप लोगों को कुछ समझ भी आ रहा है तो आई विल आस्क यू फॉर फीडबैक. अगर फीडबैक अच्छा आता है, इसका ये मतलब है कि हाँ, मैंने जो बताया, मैंने जो डिलीवर किया, दैट इज़ ओके. ठीक है. तो मैंने जो ट्रांसमिट किया और आपने जो सुना, मैं अगर आपका स्पीकर हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ एंड आप रिसीवर हो, आप रिसीव कर रहे हो जो आपने गेन किया, एंड बोथ आर हैप्पी विद ईच अदर, देन द फीडबैक विल बी गुड. एंड इफ देर इज़ एनी मिसकम्युनिकेशन, मिस गैप बिटवीन अस, तो वहाँ पे फीडबैक सही नहीं होगा, और इसलिए फीडबैक का होना ज़रूरी होता है. इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now communication Yes, process. sir. Communication process and elements. कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, एलिमेंट्स क्या है? तो जैसा मैंने आप लोगों को, जब नाइन्थ क्लास में आप लोग थे, तो मैंने जब आप लोगों का फर्स्ट या सेकेंड सेशन लिया होगा, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में बात करी थी कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इफ़ आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज एंड you don't have knowledge, if I know the Russian language, okay, and you don't have knowledge about Russian language, and you only understand English and Hindi, I don't have information about English or Hindi language, okay, then how we may communicate? There is no option, but you can see here code, the message is this, and coding. तो जो मैसेज था, जो मुझे मैसेज डिलीवर करना था, मान लो मैंने रशियन में इसको कोड कर दिया, एंड यू हैव टू डिकोड दैट. तो इसके लिए बीच में क्या करते हैं, एक ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं. एम आई राइट? बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर, इज दैट पॉसिबल और नॉट? Yes, sir. Possible. ओके. Yes, sir. Yes, sir. सो यू कैन सी हियर बाय, जब मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था, होमवर्क में मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी आप लोग होमवर्क कर रहे हो तो जो भी टॉपिक्स हैं उसके कंसर्न कुछ पिक्चर बनाओ, कुछ फ़ोटो बनाओ, कुछ ग्राफ्स बनाओ, सो दैट योर रिप्रेजेंटेशन मे बी मोर इफेक्टिव एंड दैट इज़ अट्रैक्टिव टू. लाइक एज दैट, देखिए कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स को कितने अच्छे से बिल्कुल यहाँ पे शो किया गया है. सो यू कैन सी हियर द मैसेज, ये मैसेज है, इसने क्या किया, कोड किया, एंड दैट पर्सन इज डिकोडिंग. ये आपका क्या हो गया, स्पीकर हो गया, एंड ये आपका लिसनर हो गया. जैसे यहाँ पर द मैसेंजर, दैट पर्सन इज सेंडिंग द मैसेज, एंड द रिसिपिएंट, ये इसको रिसीव कर रहा है. ओके, व्हाट आई मीन, इंफॉर्मेशन और इनपुट, behavior output, what I understand, this is the channel, this is your cycle, communication cycle. Okay, then coding, the channel is speaking, writing, graphic, video etc, and that is decoding, and at least some code in common. दोनों के लिए क्या होगा, वो कॉमन होना चाहिए, है ना? दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन. एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, नाउ communication starts with the sender. Now the sender is now going to send the message. Now, who was the recipient? Now he is as sender. Okay, can you see here? Is that visible to you now? Yes, sir.
ओके। Yes, sir. तो अब देखिए यहाँ पे Yes, sir. जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, Yes, sir. देर आर थ्री वेज टू कम्युनिकेट। थ्री वेज क्या होते हैं? एक जैसे आप लोग टेलीविज़न वगैरह देखते हो, टेलीविज़न से जब देखते हैं हम लोग, टेलीविज़न जब देखते हो तो कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? कम्युनिकेशन हो Sir, रहा हो रहा है, ओके। सर हो रहा है. दैट इज़ सिंप्लेक्स। उसको अब जब कम्युनिकेट हो रहा है, जब टीवी टेलीविज़न और आपके बीच कम्युनिकेट हो रहा है, तो आप जो है ना, आप रिसिपिएंट हो, बट यू कांट रिप्लाई देयर। आप रिप्लाई कर सकते हो क्या? है. No, sir. जैसे आप No, एफएम sir. सुनते हो, टीवी वॉच कर रहे हो, तो आप वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर सकते हो। यू आर ओनली एक्ट लाइक एज लिसनर, यू डोंट हैव परमिशन टू रिएक्ट, है ना? तो आप वहाँ पे क्या करोगे, वो एक जो होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स, दैट इज़ वन वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे सिर्फ एक टाइम मतलब जो सेंडर होगा वही आपको बताएगा, एंड यू कांट एक्ट, ओके। नाउ दूसरा क्या होता है, हैव यू सीन इन एनी मूवी और इन सीरीज लाइक एज वाकी टॉकी? वाकी टॉकी, हैव यू सीन दैट? Yes, sir. SSB में देखा था. ओके, एसएसबी में आपको दिखाया था, दैट्स वेरी नाइस। चलो, हमारे मतलब जो गेस्ट, सॉरी, जो इंडस्ट्रियल विजिट हुआ था उसका कुछ तो यूटिलाइजेशन आपको दिखा यहाँ पर, है ना? Yes, sir. आई आल्सो हैव रिमेंबर अबाउट दैट कि वहाँ पे बताया था इस कम्युनिकेशन के बारे में। दैट्स वेरी नाइस। हु इज सी? किसने अभी याद कराया भाई? अच्छा, Sir, भूमि. दैट्स वेरी गुड। ठीक है। तो सो वहाँ पर क्या होता है ना कि एक कम्युनिकेशन तो ये हो गया। दूसरा कम्युनिकेशन ये होता है कि जैसे उस कम्युनिकेशन में वाकी टॉकी जो कम्युनिकेट करते हैं उसमें क्या करता है, जैसे मूवी में देखा होगा आप लोगों ने, क्या फर्स्ट पर्सन जैसे ही एक कोड होता है उनका, ओवर, ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट का मतलब हो गया कम्युनिकेशन फिनिश। अगर ओवर किया, इट मीन टू से माई कंसर्न इज ओवर, माई टॉपिक इज ओवर एंड माई पार्ट इज ओवर, नाउ इट्स योर टर्न। ठीक है। तो उनका ओवर एक कोड होता है, तो क्या करते हैं वो लोग, कुछ बोलते हैं, एक लाइन बोला, ओवर किया, इट मीन टू से नाउ यू मे रिएक्ट। ठीक है। तो वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है ना कि एक ने पहले स्टॉप किया, फिर दूसरे ने स्टार्ट किया। एक ने पहले सुना, दूसरे ने पहले बोला था। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, पहले इसने बोला, फिर इसने सुना। अब क्या कर रहा है, ये बोल रहा है, फिर ये सुन रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे एक चैनल होता है, वॉकी टॉकी में एक चैनल होता है, वॉकी टॉकी। ओके, सो यू मे सी हियर, ये वॉकी टॉकी देख रहे हो, हमेशा हमेशा ये पेयर में होते हैं, सिंगल नहीं होता है, हमेशा ये पेयर में होते हैं। तो अब यहाँ पे जो बटन देख रहे हो आप लोग, ये बटन आपको लगा हुआ दिख रहा है, तो ये बटन करने स्विच करने का बस बटन होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज़ एंटीना, एलईडी इंडिकेटर, एक बल्ब जलते रहता है, दैट इज़ पीटीटी, मॉनिटर बटन, एलईडी की, ओके, एंड दिस इज स्पीकर। नाउ चैनल स्विच, पावर स्विच, एसपी के जैक, माइक जैक एंड माइक। तो ये सारी चीज़ें एक वाकी टॉकी में होती है, एंड आफ्टर देन यू मे कम्युनिकेट। यहाँ पर क्या होता है, चैनल को स्विच किया जाता है, बार बार स्विच किया, ये चैनल स्विच आप देख रहे हो ना, तो बार बार चैनल को स्विच किया जाता है। ये चैनल कभी एज ए स्पीकर काम करता है, कभी एज ए लिसनर काम करता है, लेकिन दोनों एक साथ काम नहीं करेगा आपका। ठीक है। एंड ठीक है. नाउ द सेकेंड, सर एक क्वेश्चन था, वॉकी टॉकी में कितना दूर तक उसका सिग्नल पकड़ सकता है? मतलब एक के पास कितना, तो एक 10 मीटर दूर रहेगा और दूसरा 20 मीटर तो पता चल जाएगा? actually that depends upon the frequency level what is set by the service provider। इट में जैसे हमारे जो फोर्स में रहते हैं उनका सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रेंज फॉर दैट, ओके। सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। कुछ होते हैं जो प्रॉपर, जैसे किसी शॉपिंग मॉल हो गया, या कहीं आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी स्टाफ्स रखते हैं वो रखते हैं अपने पास, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, उसका रेंज फिक्स किया जाता है कि आप इतने रेंज तक ही इसका यूज़ कर सकते हो, ओके। सर ये वॉकी टॉकी तो बहुत लोगों के पास होता है, तो जिनसे बात करना होता है उन्हीं से सिग्नल कैसे पकड़ता होगा? यही तो दोनों को फ्रीक्वेंसी, जैसे देखो, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन एंड नाइस, दैट इज़, अब जैसे मुझे आपको कॉल करना है, ठीक है, तो मुझे आपको कॉल करना है, तो क्या करता हूँ मैं, आपका नंबर डायल करता हूँ, ठीक है। आपका नंबर डायल किया, देन आपको कॉल होती है, तो वो क्या होता है,
फ्रीक्वेंसी रेंज सेम आ जाता है हमारा, ठीक है। हम लोग एक चैनल पे कांटेक्ट कर रहे हैं, जब मुझे बात करनी है तो आपको उस फ्रीक्वेंसी में आके उस चैनल पे आके बात करनी होगी। जैसे मान लो आप लोग न्यूज़ चैनल देख रहे हो, तो न्यूज़ चैनल में क्या करते हो, जैसे आज तक देखना है या फिर मान लो एनडीटीवी देखना है या एबीपी न्यूज़ देखना है, तो वो क्या करते हो, चैनल स्विच करते हो ना। यस सर। Yes, sir. तो that mean to say you are going to transmit in the same frequency, that's why you can view that channel, right। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अब क्या होता है, जैसे हमारे जो जैसे बॉर्डर वगैरह पे देखा होगा आप लोगों ने वॉकी टॉकी यूज़ करते हुए, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी अनलिमिटेड होती है, वो कहीं पे भी आपको मतलब वो एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे सेट किया जाता है और सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, उसकी रेंज जो है ना, रेंज उसकी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। और दूसरा जो आता है लिमिटेड वाला आता है। लिमिटेड जैसे कि कुछ जैसे 200 मीटर रेंज फिक्स कर दिया इसका, या 500 मीटर रेंज फिक्स कर दिया, उस रेंज में ही बात हो सकती है। जैसे कभी कभी अगर आप लोगों ने रेलवे से कभी कभी ट्रेन देखी होगी या मेट्रो देखा होगा, तो वहाँ भी देखते हैं ना कि जैसे जो ड्राइवर है और जो लास्ट बॉगी होती है, लास्ट बॉगी में एक कार्ड। हाँ गार्ड की बॉगी होती है, तो ड्राइवर और गार्ड के बीच हमेशा कम्युनिकेशन होते रहता है बाय द हेल्प ऑफ दिस वॉकी टॉकी, ठीक है। तो और जैसे आप लोगों ने पुलिस फोर्स की आई मीन टू से कि पुलिस की वैन देखी है, पीसीआर वैन वगैरह। यस सर। Yes, sir. जब पीसीआर वैन को देखते हैं ना, तो उसके गाड़ी में ही एक फिक्स होता है, गाड़ी में फिक्स होता है, देखा है आप लोगों ने। यस सर। तो वो वहाँ Yes, से sir. देख हाँ Yes, बिल्कुल, sir. वो वहाँ से ही बात करते हैं। दैट इज आल्सो द वर्क लाइक एज दिस वॉकी टॉकी, ठीक है। और हमेशा उनके जो वैन होती है उस पर एक एंटीना लगा होता है, ठीक है। सर हमें मतलब किसी एक से बात करनी हो वॉकी टॉकी से, तो सर उसका नंबर दिया जाता है या सर नहीं, एक वॉकी टॉकी से सब बात करते हैं? इस पे फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है, फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है इस पे, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी पे आके ही बात कर सकते हैं आप, यहाँ से फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है, ठीक है। आपको क्या किया जाता है, इसको एक बार फ्रीक्वेंसी सेट करके आपको दे दिया गया, देन यू में कम्युनिकेट, आप दोनों एक दूसरे से ही कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ओके। तो और किसी थर्ड पर्सन के पास भी अगर उससे भी कनेक्ट करना हो तो ये क्या कर सकते हैं? उसके लिए क्या करना होता है, एक बीच में जो हब बनता है, बीच जैसे मुझे मान लो कम्युनिकेट करना है, मान लो आपके एग्जांपल के लिए घिटोनी पुलिस स्टेशन के लोग बात करना चाह रहे हैं कि वो वसंत कुंज के पुलिस स्टेशन से बात करेंगे, ठीक है। तो उनको पहले क्या करना पड़ेगा, घिटोनी पुलिस स्टेशन की जो पीसीआर वैन है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट है घिटोनी स्टेशन से, ठीक है। और अब घिटोनी स्टेशन कम्युनिकेट करेगा किसको, वसंत कुंज के पुलिस स्टेशन को। बात समझ रहे हो आप। यस तो पहले सर। आपकी बातें जाएगी कहाँ, घिटोनी पे, घिटोनी से वहाँ से ट्रांसमिट होके फिर आप लोगों को हो सकता है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करा दे, या तो फिर उस रिसीवर से कनेक्ट कराएगा आपको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सो नाउ अब देखिए दूसरी बात ये, एक तो ओके सर। ये हाफ डुप्लेक्स कहलाता है, ये हाफ डुप्लेक्स कहलाता है। एक सिंप्लेक्स हो गया, ये हाफ डुप्लेक्स हो गया। और फुल डुप्लेक्स में जैसे यहाँ पे आप देखिए वे ऑफ communication, okay, what are the 5 methods of communication, okay, okay, तो सिंप्लेक्स, व्हाट इज सिंप्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको टीवी वाला एग्जांपल दिया था, दैट इज सिंप्लेक्स डिवाइस। एंड उसके बाद क्या आया हमारे पास, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या हुआ, एक बार जो सेंडर है वो बोलेगा, जो मैसेज सेंड कर रहा है वो बोलेगा, और दूसरी बार क्या करेगा, जो रिसीवर है वो रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो दैट इज़ हाफ डुप्लेक्स। अब फुल डुप्लेक्स में कैसे क्या होगा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, या हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, तो लाइव सेशन में क्या हो रहा है, मैं भी रिएक्ट कर रहा हूँ, एट ए टाइम आप भी रिएक्ट कर सकते हो, दैट इज़ फुल डुप्लेक्स, ओके। तो हमारे कम्युनिकेशन के 3 वे हो गए, जिसको मैंने टेक्नोलॉजी से रिलेट करके आपको बताया अभी, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सॉरी सिंप्लेक्स, यहाँ पे सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है एंड फुल डुप्लेक्स, ओके। सो नाउ हियर इज द मैटर अबाउट कम्युनिकेशन। तो ऐसा ही कम्युनिकेशन आपके नॉर्मल लाइफ में भी चलता है, ठीक है।
तो दिस इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन। एंड नाउ यहाँ पर आपको दिखाएगा फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है। पहले तो एक कम्युनिकेशन आपने यहाँ से इस्टेब्लिश कर ली, फिर ईमेल के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो, फिर नोटिस और पोस्टर्स, जो आपके नोटिस होते हैं या पोस्टर्स होते हैं उसके थ्रू भी तो कम्युनिकेट करते हैं ना। एम आई राइट और नॉट? यस सर। यस सर। हाँ, एंड नाउ बिजनेस मीटिंग। बिजनेस मीटिंग, जैसे बिजनेस मीटिंग हो रही है तो कम्युनिकेशन वहाँ पर भी इस्टेब्लिश ही हो रहा है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। तो these are the methods of communication. Now this is other method like as your phone. By the help of phone you may also send your message, send your text, send call or receive. Okay, so choosing the right method of communication depends upon target audience. कितने को टारगेट करना है। सबसे पहले जो आप मेथड यूज़ करते हो तो कौन सा मेथड किसके लिए यूज़ करोगे। मान लो मुझे किसी 10th क्लास के किसी एक बच्चे को कॉल करनी है तो मैं क्या करूँगा, पूरा आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे बोल दूँगा, नहीं ना। या फिर मैंने कोई बड़ा सा ऐड दिलवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं ना। तो अगर मुझे सिर्फ किसी एक को इंडिकेट करना है तो क्या करूँगा, मैं उसको पर्सनली कॉल कर लूँगा या मैसेज कर दूँगा। अगर मुझे पूरे ग्रुप को करना है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर मुझे मान लो कि कुछ और करना है लाइक एज जैसे लाइव सेशन हो गया या कुछ और क्लासेस हैं यूट्यूब पे चला दिया, ताकि और जो भी बच्चे हैं 10th क्लास के दूसरे स्कूल के भी हैं वो भी इसका बेनिफिट ले पाए, है ना। एंड टारगेट ऑडियंस देखते हैं यहाँ पे। फिर कॉस्ट क्या होती है हमारी, कॉस्ट क्या है। फिर काइंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, काइंड या टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्जेंसी और प्रायोरिटी। तो जब भी कम्युनिकेट करते हैं ये सब इन सब बातों पे डिपेंड करता है। ओके, इज दैट ओके? ओके सर। ओके सर। ओके, ओके सर। so now that is a practical exercise activity 1, activity 2। यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि ये मैं बुक आप लोगों से शेयर कर ही लेता हूँ अभी, so that you can see here class 10th E। okay, that is employability skills class 10th E, ठीक है। and class 10 class। ओके, तो आपके पास ये बुक आपको मिल गई होगी, सो यू मे डाउनलोड एंड सी अबाउट द टॉपिक्स। अब यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पर जो भी हैं इसके बारे में आप देख लोगे, ठीक है। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन में यहाँ पे बताया गया है आपको टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, this is your verbal communication। okay, and now about non-verbal communication, then like as your importance। Non-verbal communication is the expression or exchange of information or message without using any spoken or written word. In other words, we send signals and message to other through expression, gesture, posture, touch, space, eye contact and paralanguage in this session। Okay, so in this non-verbal communication we are not going to use the words, the anything and we are going to use like as a sorry, in non-verbal communication there is no need to speak। okay, and we may like emoji। yeah, सर एक्ट करके। हाँ बिल्कुल। जैसे आप लोगों ने जो फिजिकली चैलेंज होते हैं डम एंड ईयर, जो लिसनिंग प्रॉब्लम होती है, जिनको जो बोल नहीं पाते हैं, वो जो कम्युनिकेट करते हैं ओनली सिंबॉलिक कम्युनिकेशन देयर इज, वो सिग्नल से ही एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, राइट। कभी कभी हम लोग भी सर ऐसा आजकल इमोजी से भी तो कनेक्ट होते हैं, इमोजी। हाँ, यू में से कि अपने एक्सप्रेशन को अपने इमोजी के थ्रू जस्ट लाइक आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम सैड, इशारों इशारों में। हाँ हाँ, लाइक दैट। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक एज दैट कि जैसे मान लो कि मैं क्लास में हूँ और आप लोग आपस में बात कर रहे हो तो आपस में बोल तो नहीं पाओगे, फिर आप लोग क्या करते हो आपस में ही ना
फिंगर से इशारे करके कि नहीं अब चुप हो जाओ, अब बोलना बंद कर दो, अब क्लास तो हो रही है, ठीक है। तो एंड सो ऑन। नहीं, जैसे मैं आपको क्लास ले रहा हूँ एंड देन आप लोग आपस में कोई आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, देन यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक एनीथिंग बट यू आर सेइंग कि नहीं चुप हो जाओ, अब बात नहीं करनी, क्लास ले रहे हैं। होता है ऐसा ना? वैसे बहुत कम देखने को मिलता है ना? Yes, sir. ओके, सो दैट इज़ गेस्चर, पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। ओके, तो इन सब चीज़ों को आप एक बार देख लोगे, इस पर जितने भी एक्सरसाइज हैं उसको आप करके अपने नोटबुक में कर लेंगे। एंड जैसे यहाँ पे देखिए कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कुछ सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है आपके अंडर कंस्ट्रक्शन। आप सिंबल देख के ही पहचान जाते हो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जैसे नो पार्किंग जोन, डेंजर वार्निंग, अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं एंड बाय द हेल्प ऑफ दीज यू मे अंडरस्टैंड द थिंग्स। जैसे कहीं पे देखो, हाँ, ट्रैफिक सिग्नल, द वेरी गुड एग्जांपल इज ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है? जब भी गाड़ी को रोकना होता है वहाँ पे रेड लाइट हो जाती है, गाड़ी ऑटोमेटिक वहाँ पे आप लोग रोक देते हो। जैसे गाड़ी येलो होगी एंड रेडी टू स्टार्ट, एंड जैसे ही ग्रीन होती है तो आप स्टार्ट हो जाते हो। वहाँ पे कोई बोलने तो नहीं आता, आपको कोई बताने तो नहीं आता कि यू हैव टू डू दैट। सभी जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, जितने भी ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, सबकी नज़र कहाँ पे होती है? ट्रैफिक सिग्नल पे, है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. These are Yes, some sir. these are some questions here, you may see that and ओके। अब जहाँ पर जैसे अभी आप लोगों ने इमोजी की बात करी, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक, ओके गुड, आप लोग थम्स अप कर देते हो। नेगेटिव फीडबैक भी थम्स को डाउन कर देते हैं, दैट इज थम डाउन। यहाँ पे नो फीडबैक, जैसे आप लोग इमोजी यूज़ करते हो स्पीचलेस लाइक दैट कि नथिंग टू से, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक क्या क्या है? इट वैलिडेट इफेक्टिव लिसनिंग, इट मोटिवेट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक का देखो इंपॉर्टेंट क्या है? इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग, यस आई एम गेटिंग। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि चलो बीच बीच में आप लोग अपनी आवाज़ भी सुना दिया करो, इट मीन टू से माई पॉइंट्स इज वैलिडेटिंग कि हाँ चलो आप लोग सुन रहे हो, आप लोग प्रेजेंट हो यहाँ पे, ठीक है। इट मोटिवेट्स, एक अच्छा लगता है कि हाँ चलो मेरे बारे में आपने बोला कि हाँ ये पार्ट अच्छा था, ये पार्ट अच्छा था, या इसके बारे में, जैसे इट इज़ ऑलवेज देयर, ठीक है। Every time you speak to a person we communicate feedback, so it is impossible not to provide one, ठीक है। And now it boosts learning, it improve performance। जैसे मेरे बारे में अगर आपने गलत भी फीडबैक दे दी तो मुझे क्या उस चीज़ पे एनालिसिस करना होता है। फीडबैक लेने के बाद क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि हाँ हमने कौन से पॉइंट्स को मिस किया, कहाँ पे मिस किया और इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू सेंड मी द पॉजिटिव फीडबैक, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ चलो ये जो काम किया बेहतर किया, अब इससे भी बेहतर करने के लिए आगे हम ट्राई करेंगे, ठीक है। दैट इज़ द रोल ऑफ इम्पोर्टेंट फीडबैक, ठीक है। And now Yes, sir. barriers to effective communication. What is effective communication? We know that there are different methods of communication: non-verbal, verbal and visual. However, all these methods can only be effective if we follow the basic principles of professional communication skills. This can be abbreviated as 7 communications, that is clear, concise, concrete, correct, coherent, complete and courteous. These are further explained in one figure। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें दी गई हैं आपको। एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज सेवंस कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट सर्टेन बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सेवन कम्युनिकेशन रूल्स हैं जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है। इन चीज़ को आप याद रखना, हो सकता है इससे क्वेश्चन भी बने आपका, सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर अबाउट दैट। एंड जैसे ये क्लास एंड होगी, क्लास आज एंड होने के बाद आप लोग एक बार इन चीज़ों को एक बार देखोगे। जैसे क्लियर, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। इट मीन टू से वट एवर द टॉपिक इज देयर एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर, आई मस्ट हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट दैट थिंग, ओके। नाउ बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। इज दैट ओके? Okay, sir. Okay, so now use simple words, say only what is needed. So I am going to take the live classes, क्योंकि जो बुक में है वो आप पढ़ सकते हो। you know very well about English language and you know very well about the topics, terms. We have many many option like as sorry so you have many option there, but
for like as I'm not going to use many more technical language, technical words, so that you can't understand that thing. So I'm going to deliver the speech, deliver the lecture, deliver the content I have in very simple words, very simple example. Like as a I'm going I mostly I'm going to connect the things or example in your general life, from your general life. Am I right or not? Yes, sir. मैं जब कभी भी आपसे बात करता हूँ तो Right. मैं बिल्कुल Yes, sir. आपकी जनरल लाइफ की, डेली लाइफ की चीज़ों से कुछ एग्जांपल को सेलेक्ट करता हूँ एंड देन अपने जो भी पॉइंट्स होते हैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. नाउ यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फैक्ट्स and then we move on the topic concerned and what the word may be used and can be used for that thing. So use exact word and facts, that is concrete. Okay, so that यहाँ Okay. पे देखिए सिंबल कितना अच्छा दिया हुआ है कि अगर आपने एग्जैक्ट वर्ड ऐड करते गए तो आपका बिल्डिंग जो बनेगी या बिल्डअप जो हो रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वे में होगा. नहीं, Yes. now use correct spelling and grammar. यू मस्ट हैव टू यूज़ द करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर. ऐसा नहीं हो कि, इसलिए मैं बार बार आप लोगों का जो भी कॉपी चेक करता हूँ उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आपके इट मीन टू से जो भी आपके वर्ड हैं वर्ड की स्पेलिंग को प्रॉपरली ध्यान में रखता हूँ कि आपकी स्पेलिंग गलत तो नहीं हुई है, और ज़्यादातर टेक्निकल वर्ड की स्पेलिंग को ज़्यादा ध्यान में रखता हूँ. अगर एक भी स्पेलिंग आपकी वहाँ पे करेक्ट नहीं होती है तो मैं आपको इंडिकेट करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, एंड आल्सो लुक अबाउट द ग्रामर दैट इज़ करेक्ट. ठीक है, ठीक है सर. Okay, sir. ओके. Okay, sir. Now the next thing is words should make sense and relate to the main topic. जो आपके वर्ड्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए. एग्जाम्पल आप लाइव एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, बट क्या होना चाहिए वो आपके टॉपिक से कंसर्न होना चाहिए ताकि वो आपके टॉपिक को क्लियर कर पाए. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके टॉपिक को ही मिसलीड कर दे वो. ओके, दैट इज कोहेरेंट. ओके, नाउ इंक्लूड ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन. व्हाट द इंफॉर्मेशन इज नीडेड इट मस्ट बी इंक्लूडेड. जो भी जैसे मान लो कि मैंने टेबल के बारे में आपको डिस्कस किया, टेबल के बारे में डिस्कस किया तो मैंने आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दे दिया कि आप क्या करो, आप अपने आप जैसे आप लोग असेंबली में खड़े हो तो आप अपने आप को मान लो कि एक रो है, आपका एक कॉलम है, लाइक एज जो भी एग्जांपल है ऐसे ही होता है ना. एंड देन बी रेस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट. इसके लिए तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत है क्या? नो सर. तब तो आप लोग Sir. फिर तो आप लोग समझदार हो. क्यों? Yes, sir. बहुत समझदार है. हाँ, दैट्स गुड. एंड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, इंटरपर्सनल. अब देखिए यहाँ पे बैरियर्स टू कम्युनिकेट करना है, लिंग्विस्टिक. ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए दैट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर बोथ ऑफ दैम, who is speaker and who is listener. that also must be cultural. जैसे आपके कल्चर में क्या लैंग्वेज यूज़ होते हैं, आपके कल्चर में हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड यूज़ हो जो ऑफेंसिव हो, या मेरे कल्चर में कोई ऐसा वर्ड हो जो ऑफेंसिव हो जो यूज़ ना कर सकें. तो सो मस्ट बी इन माइंड कि जो भी लैंग्वेज यूज़ करें किसी की कम्युनिकेशन मतलब किसी को एनी हाउ हर्ट नहीं करना है, वैसे वर्ड को यूज़ करना है. ठीक है, देन फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपका लैंग्वेज होना चाहिए दैट इज़ वेरी वेल मैनर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि लाइक एज व्हाट कैन आई से, दैट इज वी कांट यूज़ दैट टर्म in the sector of education, in the field of information technology, we can't use that word. तो कभी कभी ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ नहीं है यूज़ करना. ठीक है, जैसे हाँ आप लोगों ने सुना होगा प्रोफेशनल, इन दिस प्रोफेशन वी कांट यूज़ दैट वर्ड, वी कांट यूज़ दैट टाइप ऑफ थिंग, है ना. आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? Yes. Yes, sir. Yes. एंड दिस इज इंटरपर्सनल. एंड नाउ द इंटरपर्सनल, तो ये आपके बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के. ठीक है, और जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे फिजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर्स, ये सब इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी. ठीक है, एंड इन सिमिलर वे सो यहाँ पर है आपका
राइटिंग स्किल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो लिखते हो या जो लाइक एज राइटिंग स्किल्स आर पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड इंक्लूड ईमेल्स, लेटर्स, नोट्स, आर्टिकल, एसएमएस, चार्ट, ब्लॉग्स इटीसी। तो ये सभी आपको क्यों आपको बनाया, मैं अगर आप लोगों को ये बोलता हूँ कि चलो आप लोग लिखो, तो उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि आपकी राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करना है, नहीं? ठीक है। Yes, sir. सर अब यहाँ पे राइटिंग स्किल के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, कहाँ पर आप एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करोगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को किस तरह प्लेस करोगे, कहाँ पे आप पंक्चुएशन मार्क यूज़ करोगे, कहाँ पे कौन सा सेंटेंस फॉर्म करना चाहिए, कहाँ पे आपका नोट ऑफ इंट्रोगेशन जैसे इंट्रोगेशन का मार्क हो, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना चाहिए, पंक्चुएशन हो गए आपके। एंड जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स कौन से पार्ट्स का कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ओके, तो ये सभी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब जो भी हैं यहाँ पे सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ टाइप स्पीच। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप आर्टिकल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सभी चीज़ें आप प्रॉपर वे में कहाँ पे कैसे यूज़ करते हो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ओके, मैं आप लोगों को शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई नो वेरी वेल कि यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग एंड यू नो दैट थिंग आल्सो। तो सो मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। एंड दैट इज़ राइटिंग स्किल, सेंटेंसेस, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि जब वर्ड को आप फ्रेम करते हो तो उनको इस तरह फ्रेम किया, सेंटेंस बनाने के लिए इस तरह फ्रेम किया जाता है कि कोई सेंस बने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे एक वर्ड ले लो कार, कार में CAR, ठीक है, ACR, इसको कार को बनाने के लिए क्या किया, लेटर तो आपके CAR ही हैं, अब उसको अरेंज किया गया एक सेंस में, तो वहाँ पे क्या बन गया, एक आपका यहाँ सेंसेबल आपका वर्ड बन गया, जो आपको इस वर्ड का मतलब होता है। इस वर्ड का मतलब तो आपको बहुत क्लियर है, नहीं? इसी तरह सेंटेंस फॉर्म करने के लिए अगर मैं लिख दूँ एक कार सोनिया ड्राइव्स, तो सेंस आपका क्लियर नहीं लेगा। ठीक है, इसी को अगर यहाँ पे लिख दिया है सोनिया ड्राइव से कार, तो ये इट मेक्स यू सेंस कि हाँ चलो ये आपका क्लियर बिल्कुल सेंटेंस है। ठीक है, अब टाइप्स, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ऑब्जेक्ट क्या क्या है यहाँ पर, एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। अभी गुड मॉर्निंग, बीच क्लास में? सर मैं पहले ज्वाइन कर ली थी सर, क्या कहते हैं अभी ना कहीं जाना है तो मैं लेफ्ट हो रही हूँ। ओके ओके, ऐसे भी 2 मिनट में तो क्लास ओवर होने वाली है। ठीक है, सो नाउ ओके सर। यू मे यूज दिस थिंग, क्वेश्चन स्टेटमेंट, लाइक एज क्वेश्चन आंसर करते हैं तो कैसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, WH क्लॉज क्या होती है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है, क्वेश्चन का कैसे रिप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन सब चीज़ों को। स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इमोशनल रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑर्डर और इम्परेटिव सेंटेंसेस, जो भी है ये आप यहाँ पर देखोगे। और आई नो मोस्ट ऑफ द थिंग यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, बट जस्ट लाइक एज रिवाइज एक बार इन चैप्टर्स को आप देख लेना, और जो भी आपको ऐसा लगे कि मिसिंग टर्म्स हो, जो आपको नहीं पता हो या सीखने की ज़रूरत हो, तो सो यू मे लर्न फ्रॉम देयर। और अगर कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो, तो यू मे डिस्कस इन ग्रुप और सेंड मी पर्सनली। ओके ओके सर। मैं ग्रुप में सेंड करने के लिए इसलिए करता हूँ कि हो ओके सकता है, सर। मैं ग्रुप में सेंड करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि हो सकता है जो आपकी प्रॉब्लम है सिमिलर प्रॉब्लम किसी और बच्चे को हो, तो वो क्या करेगा, आपके थ्रू वो भी एक हेल्प हो जाएगा और उस बच्चे को भी क्लियर हो जाएगा, है ना? और अगर जिस बच्चे का क्लियर है पहले से, उसका एक रिपीटेशन हो जाएगा। नहीं, दिस इज़ द मेन मोटिव कि मैं आपको ग्रुप में शेयर करने के लिए कहता हूँ। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन एंड दिस इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास Okay, में sir. देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़, ओके सर। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो यू मे आस्क हियर। ओके,